Hello students, how are you? Hope you all are fine by the God's grace. And here also I am fine. And today we are going to start question number 4. Question number 4, exercise 7.2. And it is given that BE equal to CF. BE is equal to CF. Okay? So I will write this BE is equal to CF. BE and CF are altitude. Altitude, I hope you know, altitudes are actually perpendiculars, and perpendicular means 90 degree. It is written angle F equal to 90, angle E equal to 90 degree. Okay? आपको प्रूव करना है ABE ऊपर का ट्राइंगल बच्चों, ABE is congruent to ACE, यानी आपको ऊपर के दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. ठीक है बच्चों? एंड विद द हेल्प ऑफ दैट कॉन्ग्रुएंसी यू आर गोइंग टू प्रूव दिस CPCT. So let me start. In triangle ABE and triangle ACF. So first you can say that BE equal to CF. So BE equal to CF. BE equal to CF. This you can write गिवन. ठीक है बच्चों? अगर आप चाहे दोनों ट्रायंगल को अलग कर सकते हो. ये मैंने बना दिया. तो ये है बच्चा ABE और दिस इज AC. This is 90, this is F. Okay, I have made both the triangles separate. So from here you got this, from here you got this. Okay. Now BE is equal to CF. Now this is 90 and this is 90. So what will you write? Angle BEA. BEA equal to angle CFA. CFA equal to 90 degree. So this is again given. Okay बच्चों, और कौन सा इक्वल है बताइए? Anything else is equal? So this angle is common. If you see this angle and this angle, so you can write angle BAE. This angle BAE is equal to angle CAF. तो you can write ब्रैकेट में कॉमन. ठीक है बच्चों? देयरफॉर ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट. ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ABE. ट्रैक क्या है बच्चों? ये एंगल से ब्लैंक एंगल, ये एंगल से ब्लैंक एंगल, ACF. व्हाट इज द क्राइटेरिया? दिस इज A, दिस इज A, दिस इज A dash, दिस इज A dash, and this is S, this is S. AAS. So you can write AAS. Is it clear? So both the triangles are congruent by the concept AAS. Now you can write CPCT. देखिए मैंने दो एंगल यूज़ किया है, ये और ये, तो ये एंगल इक्वल होगा, इसका नाम क्या है? ABE. तो you can write angle ABE is equal to angle FCA. या तो ACF. दो एंगल यहाँ पे है, दो एक एंगल यहाँ, तीन एंगल हो गया. एक साइड यहाँ पे है, बाकी दो साइड कौन सा इक्वल होना चाहिए बच्चों? AB इक्वल टू AC. AB इक्वल टू AC. और बच्चों फर्स्ट सेकंड मैंने ले लिया, सेकंड थर्ड BE इक्वल टू CF. तो यू कैन राइट BE इक्वल टू CF. थर्ड बच्चों AE इक्वल टू AF. AE equal to AF is what? That also you can write. But one side you have AE equal to CF and this is not CPCT, this was given. ठीक है बच्चों? तो आप लिखेंगे AE equal to AF. So तीनों को मिला के लिखेंगे CPCT. But you wanted this. ये मैंने बस आपके इंफॉर्मेशन के लिए लिख दिया है.
तो ऐसे करके बच्चों मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक क्या किया, बोलिए क्या किया, मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। और ये जो स्लॉट है ये क्या है बच्चों, CP/CT, बस इतना ही है। और ये दो ट्रायंगल मैंने यहाँ से निकाल के आपको दिखा दिया। इज इट क्लियर बाय द स्टूडेंट्स? तो ये क्वेश्चन में भी कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, बस आपको दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, फिर वहाँ से CP/CT निकालना है। ठीक है बच्चों? ओके, नाउ वी विल लुक इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ काइंडली राइट दिस कंप्लीटली। Students, this is question number 5. Now you see ABC and BDC are isosceles triangles such that AB equal to AC. So this is AB and this is AC, and BD equal to DC. So this is BD and this is CD. ठीक है, आपको प्रूव करना है एंगल ABD, ये पूरा एंगल बच्चों ABD. So this is complete angle ABD. So you have to prove that this angle is equal to this angle. Is it clear? चलिए, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको कॉन्ग्रुएंसी की कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर गोइंग टू यूज़ द लॉजिक ऑफ थियरम 7.2 which says that if sides are equal then their opposite angles will be equal. Angle opposite to equal sides are equal. Okay, so first I'm going to write in triangle ABC, in triangle ABC, AB equal to AC, क्या है बच्चों ये गिवन। Therefore angle ABC is equal to angle ACB. ABC is equal to angle ACB. So this is as per theorem 7.2 and you can call this as number 1. नेक्स्ट नीचे के ट्रायंगल में आ जाइए। इन ट्रायंगल BDC, BD equal to DC. What is this? Given. Therefore you can write angle DBC equal to angle DCB. Again this is theorem 7.2 and you can call this as number 1. Now add both 1 plus 2. ठीक है, ऐड करिए, क्या आएगा बोलिए। ABC DBC ACB DCB, ये दोनों अब ABC प्लस DBC क्या है बच्चों, ABC DBC। आप इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे, देखिए मैं दिखाता हूँ। हाँ, ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक और ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, इन दोनों को ऐड करेंगे, यू विल गेट ABC ABD। तो यू विल गेट एंगल ABD एंड हियर दिस इज एंगल what, ACB and this is angle DCB. If you add both the angle you will get ACD. यहाँ पे आ जाएगा बच्चों ACD ABD, hence proved. यानी here you are going to use theorem 7.2 for upper triangle and theorem 7.2 for lower triangle and you are going to add both the equations. That's all. Is it clear? Is it easy? Okay my dear students, write this completely. Students, now we are going to solve question number 6. ओके, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ भी कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, यहाँ यू आर गोइंग टू यूज थियरम 7.2. ABC is an isosceles triangle that is AB equal to AC, AB equal to AC and AD equal to AB, AD equal to AB. ये और ये इक्वल है बच्चों, ठीक है। देखिए ये और ये क्या है, इक्वल, और ये दोनों बच्चों भी क्या है, इक्वल. इज इट क्लियर? You are going to prove that BCD equal to 90 degree. BCD is 90 degree. Now you see
सबसे पहले बच्चों हम यूज करेंगे इन ट्राइएंगल. वेल बिफोर दैट व्हाट इज गिवन? AB equal to AC number 1. So this is given. Is it clear? Next, AD equal to AB number 2. ये भी क्या है बच्चों? गिवन. ध्यान दिख रहा है आप लोगों को? फ्रॉम 1 and 2. 1 and 2 से क्या बोलेंगे? AB AC के बराबर है, AD AB के बराबर है, तो आई कैन से दैट AB इक्वल टू AC इक्वल टू AD. ये तीनों साइड आपस में इक्वल हैं, इसीलिए मैंने सिंगल 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 दिया है. ठीक है बच्चों, सिंपल. देखिए अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ. राम इक्वल टू रहीम. ठीक है बच्चों, रहीम इक्वल टू जॉन. बताओ बच्चों, राम रहीम के बराबर है और रहीम जॉन के बराबर है, तो आप इन दोनों को मिला देंगे तो यू विल गेट, बताइए, राम इक्वल टू रहीम इक्वल टू जॉन. सो लाइक दैट AB इक्वल टू AC, AD इक्वल टू AC. तो ये जो AB है बच्चों दोनों में है, देखिए, तो AB AD के बराबर है, AB AC के बराबर है, इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर हैं. AD इक्वल टू AB इक्वल टू AC. क्लियर है? आए समझे बच्चों? कार्मल स्कूल इज इक्वल टू सागरितारा स्कूल. सागरितारा स्कूल इज इक्वल टू निर्मला स्कूल. व्हाट कैन यू से? कार्मल सागरितारा के बराबर है और सागरितारा निर्मला के बराबर है, तो ये तीनों स्कूल आपस में एक दूसरे के बराबर हैं. इज इट क्लियर? ओके. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, AB इक्वल टू AC इक्वल टू AD. नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द ट्राइंगल. इन ट्राइंगल ABC, in triangle ABC, see, AB equal to AC, this is given. AB equal to AC. Don't you feel then their opposite sides angles must be equal? Equal होगा नहीं होगा बच्चों? When the sides are equal, then their opposite angles must be equal. So you can say that angle B is equal to angle C. मैं नाम दे देता हूँ बच्चों, इसको मैं नाम दे देता हूँ 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. एंगल 4, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 1. इससे क्या आपको थोड़ा सा आराम रहेगा. मैं बताता हूँ कैसे. आई विल राइट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. सो दिस इज नंबर 3. नाउ लेट अस स्विच ऑन टू नेक्स्ट ट्राइंगल. इन ट्राइंगल आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हो theorem 7.2. now in triangle ADC, in triangle ADC, so what will you say students? AC equal to AD. देखिए AC और AD आपस में इक्वल है. AC equal to AD. now since the sides are equal, then their opposite angles must be equal. so AC का opposite angle 4 है, AD का opposite angle 3 है बच्चों, तो 4 इक्वल टू 3. तो आई कैन राइट एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3. दिस इज 4. अगेन दिस इज एज पर थियरम. इज इट क्लियर? ओके. नाउ आई एम गोइंग टू यूज द बिगर ट्राइंगल. नाउ कम टू द बिगर पिक्चर. इन ट्राइंगल ABC, can I write angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree? This is what? Angle sum property of triangle. So what is angle A? बच्चों angle A तो नहीं बोलेंगे, सॉरी. इन ट्राइंगल DBC, ये आ जाएगा DBC, ये आ जाएगा D. ठीक है बच्चों. What is angle D? It is written, it is 4. What is angle B?
angle B is angle 1. What is angle C? Angle C is a combination of 3 and 2. ठीक है बच्चों, एंगल C जो है वो 3 और 2 का कॉम्बिनेशन है, 3 और 2 मिल के बना है। तो मैं लिखूँगा एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, देखिए आपको चाहिए बी सी डी लास्ट में, तो मैं लास्ट से शुरू करता हूँ। यू वॉन्ट बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। यू नो व्हाट इज बी सी डी? बी सी डी कंसिस्ट ऑफ 2 एंगल्स, 2 + 3। तो आपको चाहिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री। सो दैट मीन्स यू वॉन्ट एट द लास्ट ओनली एंगल 2 एंड एंगल 3। यू डोंट वॉन्ट एंगल 4 एंड एंगल 1। तो ये 4 और 1 को मैं 2 और 3 में चेंज करता हूँ। देखिए कैसे। वी नो दैट एंगल 4 इज एंगल 3। सो इन द प्लेस ऑफ एंगल 4 आई विल राइट एंगल 3 एंड इन द प्लेस ऑफ एंगल 1 आई विल राइट एंगल 2। सो एंगल 1 की जगह एंगल 2, एंगल 3 की जगह सेम, एंगल 2 की जगह सेम 180 डिग्री। तो बच्चों मैंने 4 और 1 को क्यों चेंज किया? क्योंकि 4 और 1 आंसर में नहीं है, तो मैंने 4 को 3 में बदल दिया बिकॉज आई नो दैट 4 इक्वल टू 3। आई हैव कन्वर्टेड 1 to 2 बिकॉज आई नो दैट 1 इक्वल टू 2। नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 3 आई विल बी गेटिंग 2 एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 2 2 एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, चलो फिर मैं क्या करूँगा, 2 को मैं कॉमन ले लूँगा, मेरे को मिलेगा एंगल 3 प्लस एंगल 2 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, 2 और ये एक्सप्रेशन के बीच में इनटू है तो वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यू विल गेट एंगल 3 प्लस एंगल 2 180 बाई 2। इफ़ यू कट यू विल गेट 90 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल 3 प्लस एंगल 2 यू नो इट्स एंगल बी सी डी। तो एट द एंड आई विल राइट एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव। तो बच्चों आपको एट द लास्ट जो चाहिए उसको रखिए, जो नहीं चाहिए उसको बदल दीजिए। मेरे को 4 और 2 लास्ट में नहीं चाहिए था, तो मैंने 4 को 3 में चेंज कर दिया, 1 को 2 में चेंज कर दिया बिकॉज एट द एंड आई हैव ओनली एंगल 2 एंड एंगल 3। समझे ना बच्चों? आप शुरू करते हो एक ग्रुप के साथ, लेकिन अगर आपको एंड में वो नहीं चाहिए तो आप उसको चेंज कर देना, उसको चेंज कर देना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको और एक एग्जाम्पल बताता हूँ बच्चों, क्योंकि आपको 100% समझना है। मान लीजिए स्टार्टिंग में है राम प्लस सीता इक्वल टू 100। मान लीजिए एट द लास्ट यू हैव ओनली राम इक्वल टू 200। ठीक है बच्चों, तो क्या करोगे बताइए? आप राम को ऐसे ही रखना, लेकिन जो सीता है आप इसको राम में चेंज कर देना। मान लो कहीं पे लिखा है कि सीता इक्वल टू 10 राम, मान लीजिए ऐसा लिखा है कि 1 सीता इज 10 राम, और 1 सीता 10 राम के बराबर है। एम आई राइट? वुमेन इन एम्पावरमेंट। तो आप क्या करेंगे, सीता का जगह पे लिख देंगे 10 राम इक्वल टू 100। आप इसको प्लस करोगे यू विल गेट 11 राम इक्वल टू 100। फिर आपको मिलेगा बच्चों राम इक्वल टू 100/11। तो देखिए लास्ट में ये 200 मैंने ऐसे एग्जाम्पल के लिए लिखा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपको चाहिए उसी को रखेंगे, जो नहीं चाहिए उसको ऑन द वे चेंज कर देंगे। तो ये जो लॉजिक है यही लॉजिक मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। समझे ना बच्चों? तो स्टार्टिंग कैसे शुरू हो रहा था? राम और सीता के साथ शुरू हो रहा था। लास्ट में क्या था? खाली राम था। तो मैंने क्या किया, ये सीता को यहाँ से राम में कन्वर्ट कर दिया। तो उसी तरह से यहाँ पे 4 है, 1 है, 3 है, 2 है, लास्ट में केवल 3 था और 2 था। तो मैंने ये 4 को और 1 को क्या कर दिया, चेंज कर दिया बच्चों। ठीक है बच्चों? तो वंस अगेन जस्ट हैव ए स्मॉल रिविजन। सो व्हाट आई हैव डन हियर, AB equal to AC, AD equal to AB. From 1 and 2 I found that all the 3 segments are equal, all the 3 sides are equal. So in triangle ABC I have applied theorem 7.2, so angle 1 equal to angle 2. And in triangle ADC I have applied theorem 7.2, I got angle 4 equal to angle 3. Okay, then after that in triangle DBC I have applied the
angle sum property of a triangle. After applying angle sum property of a triangle, I wanted only 3 and 2, so I changed angle 4 and angle 1 to angle 3 and angle 2, and finally I got the answer. तो ये है बच्चों ट्रैक। तो एक बार छोटा ट्रायंगल में लगाना है थ्योरम 7.2, ये छोटे में लगाना है थ्योरम 7.2, फिर बड़े में लगाना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, फिर उसके बाद बच्चों 4 और 1 को चेंज कर देना है 2 और 3 में। बस इतना ही है, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़िया से लिख दीजिए। और कोई डाउट है तो मैं हूँ ही, आप कॉल करिए, रिलैक्स रहिए, सारा डाउट आपका मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। Now students, we are going to solve question number 7 of exercise 7.2. Go through the question. ABC is a right angled triangle in which angle A equal to 90 degree. तो बच्चों यहाँ पे फिगर आपको खुद बनाना पड़ेगा, फिगर दिया नहीं है। तो एंगल A is 90, so this point I will write A. आप B कहीं भी लिख सकते हो, C कहीं भी लिख सकते हो। This is what? 90 degree. AB इक्वल टू AC. इट इज सेट दैट AB इज इक्वल टू AC। फिगर में तो दिख नहीं रहा है ना बच्चों। चलो मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा उसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको लगे कि ये इक्वल है। सो यू सी नाउ AB इक्वल टू AC, करेक्ट। टू फाइंड एंगल B एंड एंगल C, आपको एंगल B और एंगल C निकालना है बच्चों। तो ये एंगल B क्वेश्चन मार्क, एंगल C क्वेश्चन मार्क, ये दो चीज़ आपको निकालना है, ठीक है। चलिए व्हाट इज गिवन? गिवन इज एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू AC। यहाँ आएगा बच्चों टू फाइंड, क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है एंगल B एंड एंगल C। प्रोसीजर, ठीक है बच्चों। अब बताइए कैसे करूंगा मैं। सबसे पहले आई एम गोइंग टू से इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू एंगल C, दिस इज गिवन। एंगल B इक्वल टू एंगल C गिवन। सो व्हेन द टू एंगल्स आर इक्वल, नो सॉरी, व्हाट इज गिवन इज AB equal to AC. So what happens, my dear students, when the sides are equal, then their opposite angles must be equal. So the side AB has opposite angle C and the side AC has opposite angle B. So angle C equal to angle B. So I can write angle B equal to angle C. Okay. Now I can say that angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree. So this you can call it as ASP of triangle, angle sum property of triangle. Now you know that both the angles are equal, angle B equal to angle C. तो एंगल A की जगह में मैं लिख दूंगा एंगल 90, एंगल B is angle B. In fact in the place of C also will write B because both the angles are equal. देखिए बच्चों दोनों जगह B है, क्योंकि B और C इक्वल है तो B की जगह तो B ही आएगा और C की जगह भी मैंने B लिख दिया है। तो दिस यू कैन कॉल इट एज, in the bracket you can write angle B equal to angle C. Now you can write 90 to angle B equal to 180, to angle B 180. This 90 will go that side, becomes minus 90, to angle B equal to 90. 2 से आप 90 को कैंसिल कर सकते हो, 45. So you will be getting angle B equal to 45 degree. Therefore what will be angle C? Angle C will be also 45 degree because we know that angle B and angle C are equal. तो यानी बच्चों ये सम को क्रैक करने के लिए मैंने दो लॉजिक यूज किया है, बताइए what is the first logic? The first logic is theorem 7.2 and the second logic is ASP of triangle. बस इतना ही है बच्चों, वेरी सिंपल, कॉन्ग्रुएंसी है ही नहीं इसमें। बस आपको पहले ASP थियरम 7.2 के हेल्प से यू हैव टू से दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C. Okay, once these two angles are equal, then you have to use angle sum property of the triangle. Okay, with that you will get 45 degree, 45 degree. चलिए मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ।
आपको मालूम है कि ट्राइंगल में तीनों एंगल को मिला के 180 डिग्री आता है. इफ एंगल B is 180 डिग्री alone, don't you feel that the sum of B and C also must be 190 degree? Because this is 90 and this is 90, total is 180 degree. Now you know that the share of these two angles are equal, यानी B और C इक्वल है. ठीक है, तो बच्चों एंगल B प्लस एंगल C 90 डिग्री है, यानी बच्चों B और C को मिला के 90 है. तो अकेला B कितना होगा बच्चों? अकेला B होना चाहिए 45, C भी होना चाहिए 45, बिकॉज बोथ आर इक्वल. सो 90 डिग्री को ये दोनों एंगल आपस में बांट लेंगे इक्वली. तो B को मिलेगा 45, C को भी मिलेगा 45. इज इट क्लियर? ओके, सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा. समझ में नहीं आए तो कॉल करिए एंड वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, यू हैव टू प्रूव दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच. यानी इफ दिस इज इक्विलैटरल ट्राइंगल A B C, what is equilateral triangle? All the sides are equal. Then you have to prove that this angle is 60 degree, this angle is 60 degree and this angle is 60 डिग्री. बच्चों ये आपको प्रूव करना है. ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे ध्यान से देखिए. सो लेट मी स्टार्ट विथ गिवन. तो बच्चों व्हाट इज गिवन? गिवन इज ABC is an equilateral triangle, that is AB equal to BC equal to CA. टू प्रूव क्या है बच्चों? आपको ये प्रूव करना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री. प्रूफ. सी केयरफुली. वी आर गोइंग टू यूज हियर ओनली वन थियरम, दैट इज थियरम 7.2. यानी थियरम 7.2 बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एट मेनी प्लेसेस यू हैव यूज्ड इट. नाउ फर्स्ट, इन ट्रायंगल ABC, बच्चों आप क्या लिखेंगे? AB इक्वल टू AC लिख दिया आपने. बताइए AB का ऑपोजिट एंगल क्या है? एंगल C. सो एंगल C मस्ट बी इक्वल टू AC का ऑपोजिट एंगल क्या है बच्चों? एंगल B. तो ये आपको मिल गया. दिस इज एज पर थियरम 7.2, टेक इट 1. अगेन you can say that other pairs are equal, that AC equal to BC. सपोज मैं बोलता हूँ AC equal to BC. आप क्या लिखेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल. यहाँ पे लिखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल. ठीक है बच्चों, चलिए यू कैन नेम दिस एज नंबर 2. ये वही राम रहीम वाली बात हो गई बच्चों. राम इक्वल टू रहीम, रहीम इक्वल टू जॉन. सो वी कैन से दैट राम इक्वल टू रहीम इक्वल टू जॉन. तो बच्चों क्या बोलेंगे बताइए? फ्रॉम. सो विच AC का ऑपोजिट साइड बताइए, ऑपोजिट एंगल? एंगल B. सो एंगल B. BC का ऑपोजिट एंगल बताइए? एंगल A. एंगल A. ठीक है बच्चों. So this is again as per theorem 7.2. This you will name it as 2. ठीक है बच्चों. From 1 and 2. 1 and 2 से क्या बोलेंगे कि एंगल A is equal to एंगल B equal to एंगल C. यानी बच्चों ये तीनों एंगल आपस में इक्वल है. आपको पता चल गया. ठीक है, देखिए यहाँ पे एंगल C इक्वल टू एंगल B है, एंगल B इक्वल टू एंगल A. यानी A किसके बराबर है? B. तो A का लिंक बन गया B से. B इक्वल टू C है, यानी ये जो B किसके बराबर है? C के बराबर है.
यानी बच्चों एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये तीनों आपस में बराबर हैं। सो ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल। अब बताइए बच्चों, इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल हमेशा लिख दीजिए, ए एस पी ऑफ ट्राइंगल। नाउ यू नो दैट ऑल द एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों एंगल बराबर हैं बच्चों। तो अब क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए 180 डिग्री, 3 एंगल ए 180 डिग्री, एंगल ए 180 बाई 3 डिग्री, एंगल ए काट दीजिए बच्चों 60 डिग्री, तो यू विल गेट 60 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू 60, एंगल बी इक्वल टू 60, एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। सो दैट मीन्स इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड देयर मेजर इज 60 डिग्री। यानी बच्चों 180 डिग्री को तीन एंगल ए बी सी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी जो 180 एंगल है बच्चों, उसको तीन एंगल को मिल रहा है, इक्वली मिल रहा है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो बताओ बच्चों 180 को डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो ए को मिल जाएगा 60, बी को मिल जाएगा 60 और सी को मिल जाएगा 60। तो कॉमन सेंस ही बोल रहे हैं ना बच्चों। जैसे मान लीजिए राम, रहीम और जॉन तीन दोस्त हैं, राम, रहीम और जॉन, और फ्रॉम समवेयर दे गॉट ₹180, कहीं से उनको 180 रुपीज़ मिला है। ठीक है बच्चों, 180 रुपये मिला है। तो ये तीनों दोस्त क्या करेंगे, आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, राइट। तो राम को कितना मिलेगा, 60 रुपीज़ मिलेगा, रहीम को कितना मिलेगा, 60 रुपीज़ मिलेगा, जॉन को कितना मिलेगा, 60 रुपीज़ मिलेगा, बिकॉज 60 + 60 + 60 इज इक्वल टू 180 रुपीज़। तो सिमिलरली ये राम है, चलिए ऐसे कर लेते हैं ना, ए फॉर अरुण, बी फॉर बाला, ओके, सी फॉर चंद्रन। तो यहाँ तीन दोस्त हैं बच्चों, अरुण, बाला, चंद्रन, ओके। और ये तीनों दोस्त को इक्वल अमाउंट मिल रहा है फ्रॉम 180। तो सबको कितना मिलेगा बच्चों, 60, 60, 60। सो दिस इज जस्ट अ लॉजिक। ठीक है बच्चों, तो लॉजिक को दिमाग में रखिए, आप ज़्यादा सम के अंदर घुसिए मत, ओके। तब देखिए आपको सारा चीज़ समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो इसको स्टोरी बना सकते हैं आप। स्टोरी क्या है, ओके, अरुण, बाला एंड चंद्रन, they did a work together and earn ₹180 degree. Sorry, earn ₹180. So how much each friends will get? Okay, so each friend will get 180 by 3 because they are going to equally divide that money. So Arun will get 60 rupees, Bala will get 60 rupees, Chandran will get 60 rupees. तो देखिए बच्चों, ये सिंपल स्टोरी ही इसके अंदर में है और कुछ भी नहीं है। और ये जो मैंने लिखा है ये थ्योरम है, थ्योरम 7.2, जिसके हिसाब से अगर दो साइड इक्वल होता है देन उसका जो ऑपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होगा। बस इतना ही है बच्चों। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास थोड़ा लंबा हो गया। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 वी हैव कंप्लीटेड 5 क्वेश्चंस। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं भी आता है कोई इशू नहीं है, आप मुझे फ़ोन करिए, मैं सारा डाउट क्लियर कर दूँगा। समझ में आना ज़रूरी नहीं है बच्चों, लगे रहिए, पढ़ाई में लगे रहिए, ओके। पुट योर बेस्ट, डाउट विल कम, क्लियर योर डाउट्स, बिकॉज आई बिलीव दैट डाउट इज़ द गेटवे ऑफ नॉलेज। जब तक डाउट नहीं आता है तब तक मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो, डाउट ज़रूर आएगा, ओके। सो पुट योर बेस्ट, कंप्लीट योर नोट्स एंड होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।